Good morning students. Today in this video we are going to discuss about the optical instruments. What are optical instruments? The instrument that works on the principle of light are called optical instruments. Most commonly used optical instruments are human eye, microscope, telescope, kaleidoscope, binoculars, camera, periscope, prism, etc. Here we are going to discuss about the microscope. In our syllabus, microscope and telescope we have to discuss. So what is microscope? Microscope is an optical instrument that is used to see very small objects with greater magnification. How many types of microscope do you know? We know the microscope are of two types. One are very simple, yani simple microscope, or you can call it magnifying glass also. And the second one is compound microscope. Simple microscope or magnifying glass. Generally it is a convex lens of high power. ये एक हाई पावर का कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ बहुत छोटी होती है. This lens is used for seeing the objects larger. The principle of simple microscope. Simple microscope works on the principle that when an object is placed within the focal plane of a convex lens, it produces its virtual erect and magnified image behind the object. बेसिकली जब ऑब्जेक्ट को किसी कॉन्वेक्स लेंस में फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा जाता है तो उस ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज बनती है जो ऑब्जेक्ट से बड़ी होती है और बिहाइंड द ऑब्जेक्ट कहीं भी बन सकती है. अगर मैं बात करूं ये कितना बड़ा कर सकता है, कितना मैग्निफिकेशन ये पैदा कर सकता है, तो मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय आई अपॉन ओ, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, और आई कैन से प्लस वी अपॉन प्लस यू. ऑब्जेक्ट कहां रखा है और इमेज कितना पीछे बना है ये इस पे डिसाइड होगा. यही है इसका मैग्निफिकेशन फॉर्मूला. एंड फाइनली द रे डायग्राम. इसका रे डायग्राम यानी वर्क कैसे करता है, इसका वर्किंग डायग्राम क्या है. रे डायग्राम देखते हैं. एक कॉन्वेक्स लेंस हमने लिया जिसका फोकस यहाँ एफ पर है और एफ और ओ के बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट एबी को रख दिया. इमेज फॉर्मेशन के दो केसेस मैंने लिए थे. एक रे जो पैरेलल जाती है आफ्टर रिफ्रैक्शन रे विल पास थ्रू द फोकस एंड द सेकंड रे व्हिच इज गोइंग थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर विल गो ऑन डेविएटेड. बोथ द रेज डाइवर्ज इन द रियल कोर्स. सो on producing back these two rays appear to intersect at point b dash. तो अगर मैं b dash से परपेंडिकुलर डालूं तो a dash b dash is called virtual image. ये virtual image ऑब्जेक्ट से बड़ी है. तो this way we can produce magnification using simple microscope. It is used to see a very small object with greater magnification by using a combination of two lenses or two convex lens. Construction, how it is consisted? It is consisted of two convex lens of different focal length and different aperture. दोनों लेंस की फोकल लेंथ भी अलग होगी, दोनों लेंस के अपर्चर भी अलग होंगे. Both the lenses are fitted in two coaxial tubes that can be moved in and out using rack and pinion arrangement. दोनों लेंसेज दो कोएक्सियल ट्यूब जिनका जो विड्थ है वो लेंस के अपर्चर के इक्वल होता है उसमें फिट होते हैं और ये ट्यूब्स रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट यानी एक पेच के साथ हम इसको आगे पीछे मूव कर सकते हैं. द लेंस ऑफ स्मॉलर अपर्चर फेसेस द ऑब्जेक्ट एंड हेंस इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव. द लेंस ऑफ लार्जर अपर्चर फेसेस आई एंड हेंस इट इज कॉल्ड आईपीस. Principle. A compound microscope works on the principle that when object is placed just outside the focus of objective produce its real inverted and magnified image in the focal plane of eyepiece. Eyepiece further magnify this image by producing its virtual and erect image either at D or at infinity. Now modes of operation. कितने मोड्स में काम करती है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप. एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर्क्स इन टू मोड्स. फर्स्ट मोड इज नियर पॉइंट मोड और स्ट्रेन्ड आई मोड. नियर पॉइंट मोड और स्ट्रेन्ड आई मोड, इस बात का मतलब है
when final image of the object is formed at the least distance of distinct vision, that we call capital D, or you can call it 25 centimeter in front of eyepiece, then the mode is called strained eye mode or near point mode. Second is far point mode or normal eye mode, or sometimes it is called relax eye mode. When final image of object is formed at infinity, then the mode is called far point mode. Although both the modes are operable in microscope, but the most preferable mode in a microscope is the near point mode, because object is very small and after a greater magnification the image also remains small. So when this image is formed at infinity, least visible, that's why we prefer near point mode while using a compound microscope. Magnifying power or angular magnification of a compound microscope, it is denoted by M. Magnifying power is defined as the ratio of angle subtended by the final image at I, that we call beta, and the angle subtended by the object at I, that we call alpha, when both final image and object are at 25 centimeter in front of eyepiece. Yani mathematically we can say beta m equals to beta upon alpha. Here beta is angle subtended by the final image and alpha is the angle subtended by the object when both are at 25 centimeter in front of eyepiece. Now we shall discuss the most important point, that is the expression of magnifying power in near point mode. ये एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला टॉपिक है, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीफाइंग पावर इन नियर पॉइंट मोड. यहां पर नियर पॉइंट मोड में हमें इसको बनाना है. सबसे पहले इसको बनाने का तरीका समझ लीजिए, क्योंकि रे डायग्राम बनाना बहुत मुश्किल है. इसके लिए मैंने सबसे पहले खींचा है एक प्रिंसिपल एक्सिस और एक छोटे से अपर्चर का मैंने एक लेंस यहां पर बनाना है. तो सबसे पहले एक छोटा लेंस यहां पर हम बनाते हैं. दिस लेंस आई एम कॉलिंग ऑब्जेक्टिव. ये मेरा ऑब्जेक्टिव है और ये है इसका ऑप्टिकल सेंटर. ऑप्टिकल सेंटर को मैंने इसके ओ कहा. ये एफओ फोकस पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, दिस इज एफओ. दोनों साइड इसका फोकस दिखाया मैंने. आई हैव जस्ट पुट द ऑब्जेक्ट जस्ट आउटसाइड द फोकस. एक ऑब्जेक्ट ए बी को मैंने फोकस से थोड़ा बाहर रख लिया. तो हाउ टू मेक द इमेज. इमेज फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, एक रे पैरेलल लेते हैं. This parallel ray would pass through the focus of an objective. Second ray we will take, that is passing through the optical center of the objective, and these two rays meet at this point. This is the image point. ये यहां से अगर मैं परपेंडिकुलर डाल लूं तो this is the image that I am calling A dash एंड बी डैश. ये इमेज है. इस इमेज के पास यहां पर एक दूसरा लेंस बनाते हैं जिसको मैंने कहा आई पीस. इसका अपर्चर थोड़ा बड़ा रखते हैं एज कंपेयर टू द ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव के मुकाबले इसका अपर्चर बड़ा रखा जाएगा और इसके ऑप्टिकल सेंटर को मैंने ई कहा आई पीस के लिए. ये मेरा आई पीस है. अब मुझे करना क्या है, क्योंकि ये इमेज इसके फोकस के अंदर बनेगी, तो यहां पर मैंने मान लिया दिस पॉइंट इज एफ ई. ये यहां पर और एक इतनी दूर मैंने दूसरा पॉइंट इधर माना एफ ई. ये मेरा एफ ई फोकस पॉइंट ऑफ आई पीस. अब इमेज फॉर्मेशन का फिर मेरे पास तरीका है. एक रे में यहां से लेता हूं जो पैरेलल जाएगी. This ray would pass through the eyepiece, focus of eyepiece. Focus of eyepiece से ये रे चली जाएगी. दूसरी रे में eyepiece के optical center से लूंगा and this ray would go this way. The two rays are not appear to meet in the future on producing back. दोनों रेज किसी पॉइंट पर मिलती हुई नजर आती हैं.
दिस पॉइंट इज द इमेज पॉइंट, यहां से परपेंडिकुलर अगर मैं ड्रॉप कर लूं तो दिस इज कॉल्ड इमेज, और ये मेरा फाइनल इमेज ए डबल डैश बी डबल डैश। अब जरा नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस था मेरा, ये था माइनस यूओ। इस लेंस ने अपना जो इमेज बनाया था वो यहां तक बनाया था, दैट आई एम कॉलिंग प्लस वीओ। ये जो इमेज ए डैश बी डैश था, इट वर्क्स लाइक ऑब्जेक्ट फॉर आईपीस, यानी यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस माइनस यू ही हो जाता है, और ये डी जो है ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है फॉर आईपीस, यानी मैं इसको कह सकता हूं ये है मेरे पास माइनस वीई, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी, क्योंकि मैंने कहा था कि नियर पॉइंट अरेंजमेंट में फाइनल इमेज डी पर बनेगा। अब मैं यहां पर एक काम और करता हूं कंस्ट्रक्शन का, इस रे को मैं आगे बढ़ाता हूं, and this ray is brought up to the point of final image। यहां तक मैं इसको ले आया, ये पॉइंट मैंने P एज्यूम कर लिया, और यहां से एक जॉइनिंग मैंने ये कर दी। दिस एंगल आई एम कॉलिंग अल्फा, ये है एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट एट आई पीस, और दिस एंगल आई एम कॉलिंग बीटा, ये है एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज एट आई पीस। So this way the figure completes. Now we shall move for the derivation. I hope you got this method of image formation quite easily. अगर याद रखें, आई पीस का फोकस इस ऑब्जेक्ट से जितना दूर होगा उतना इमेज आपका विद इन रेंज बनेगा। अगर आप इस ऑब्जेक्ट को आई पीस के फोकस के आसपास रखेंगे तो ये इमेज बाहर की तरफ होता चला जाएगा। वी नो मैग्नीफाइंग पावर m इक्वल टू होता है बीटा अपॉन अल्फा, सिंस ऑब्जेक्ट एंड इमेज बोथ आर स्मॉल, सो बीटा कैन बी रिटन एज tan बीटा एंड अल्फा कैन बी रिटन एज tan अल्फा, एंड आई कैन राइट m इक्वल टू tan बीटा डिवाइडेड बाय tan अल्फा। अगर मैं फिगर से देखूं तो tan बीटा क्या है, tan बीटा a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डैश a डबल डैश e, यानी आई कैन से tan बीटा इज व्हाट a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डबल डैश e। हमें पता है tan होता है बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सिमिलरली व्हाट इज tan अल्फा, tan अल्फा इज a डबल डैश p, a डबल डैश से p तक का परपेंडिकुलर और बेस a डबल डैश e, ये तो आपस में कट जाएगा और व्हाट रिमेन्स a डबल डैश b डबल डैश डिवाइडेड बाय a डबल डैश p। बट मुझे पता है a डबल डैश p इज इक्वल टू ab, क्योंकि अगर मैं देखूं तो AB के बराबर हाइट है A डबल डैश P की, यानी दोनों इक्वल है साइज में, तो आई कैन राइट M कैन ऑल्सो बी रिटन एज A डबल डैश B डबल डैश अपॉन AB। अगर मैं दोनों साइड A डैश B डैश का मल्टीप्लाई कर लूं तो मेरे पास रिपेयरिंग में इसकी कर लेता हूं, M इक्वल्स टू होगा A डबल डैश B डबल डैश अपॉन A डैश B डैश मल्टीप्लाइड बाई a डैश b डैश अपॉन ए बी। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो a डबल डैश b डबल डैश इज द ऑब्जेक्ट इज द इमेज, a डबल डैश b डबल डैश इज द इमेज ऑफ आई पीस, वेयर एज a डैश b डैश इज द ऑब्जेक्ट फॉर आई पीस। ये इमेज जो थी ये आई पीस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही थी, जिसका फाइनल इमेज बना था a डबल डैश b डबल डैश, यानी ये हमारे पास ME मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द आईपीस। वेयरएज अगर मैं देखूं a डैश b डैश इज नथिंग बट इट इज द इमेज ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड AB इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव, सो a डैश b डैश अपॉन AB इज कॉल्ड MO, यानी मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय मैग्नीफाइंग पावर कैन बी डिफाइंड एज ME into MO, magnification produced by eyepiece and
मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस बाय ऑब्जेक्टिव, दोनों के प्रोडक्ट को मैं कहता हूं मैग्नीफाइंग पावर ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये मेरे पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आया, इक्वेशन 1 इसको मैंने कहा, और इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चन सीधे सीधे सॉल्व होते हैं फॉर ऑब्जेक्टिव। अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो MO क्या होगा, मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड बाय द ऑब्जेक्टिव। MO किसके इक्वल होगा, MO होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी VO डिवाइडेड बाय माइनस UO, यानी MO कैन बी रिटन एज माइनस VO अपॉन UO। ये है हमारे पास मैग्निफिकेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ऑब्जेक्टिव। नाउ फॉर आईपीस हमें पता है ME इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी माइनस VE डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यानी माइनस UE, और माइनस से माइनस कट जाएगा। ME कैन बी रिटन एज VE तो मेरे पास D था और UE मेरे पास एज इट इज रहेगा। इक्वेशन नंबर थर्ड, तो इक्वेशन थर्ड को मैं फर्दर सॉल्व करता हूं, बट वी नो हमें अगर लेंस फॉर्मूला अप्लाई करें तो 1 अपॉन F इक्वल टू होता है 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, और यहां पर अगर मैं ये फॉर्मूला आईपीस के लिए लिखूं तो 1 अपॉन F इक्वल टू 1 अपॉन VE माइनस 1 अपॉन UE, पुटिंग वैल्यू 1 अपॉन FE इक्वल टू 1 अपॉन माइनस D, क्योंकि VE की जगह माइनस D आ जाएगा, और माइनस UE की जगह माइनस UE आएगा, यानी आई कैन से माइनस 1 अपॉन D प्लस 1 अपॉन UE। और अगर मैं 1 अपॉन UE की बात करूं तो इट हैज बिकम 1 अपॉन FE प्लस 1 अपॉन D, और आई कैन सिंपली राइट D प्लस FE डिवाइडेड बाई FE इंटू D। ये मेरे पास आएगा 1 अपॉन UE का वैल्यू। और अगर मैं इक्वेशन थर्ड में रखूं तो फ्रॉम थर्ड ME किसके इक्वल था, D अपॉन UE के, और हमें पता है 1 अपॉन UE की वैल्यू तो ये, यानी आई कैन से D इंटू FE प्लस D डिवाइडेड बाई FE इंटू D। D से D कैंसिल होगा, यानी ME क्या आएगा मेरे पास आएगा FE प्लस D डिवाइडेड बाई FE। ये मैंने मान लिया इक्वेशन 4 फ्रॉम 1, 2 एंड 4। अगर इक्वेशन 1, 2 एंड 4 को मैं देखूं तो आई कैन राइट मैग्नीफाइंग पावर M इक्वल टू माइनस VO अपॉन UO, MO की जगह मल्टीप्लाइड बाई ME की जगह क्या FE प्लस D डिवाइडेड बाई FE। और ज्यादा सिंप्लीफाई में इसको कर सकता हूं, F इक्वल टू माइनस VO अपॉन, और यहां से 1 प्लस D अपॉन FE। ये है मेरे पास मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन नियर पॉइंट मोड। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द फाइनल इमेज इज इन्वर्टेड विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। द प्रैक्टिकल फॉर्मूला, ये हमारा थ्योरेटिकल फॉर्मूला है, बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। प्रैक्टिकल फॉर्मूला देख लेते क्या है। प्रैक्टिकल फॉर्मूला ऑफ मैग्नीफाइंग पावर, मैग्नीफाइंग पावर का प्रैक्टिकल फॉर्मूला, द फॉर्मूला वी हैव ऑब्टेन्ड बाय नाउ was the theoretical formula and rarely used. Now the practical formula: to achieve high magnification, object is just placed on the focus of objective. Means I have put object AB onto focus FO such that UO becomes equal to FO. UO becomes equal to FO this time. And if object is placed on the focus of a convex lens, it produces its image at infinity. So ray will be heading for infinity, but these rays will be intercepted by the eyepiece and the image is formed on the eyepiece itself. So distance of image VO becomes equal to the separation between the two lenses that we call length of microscope, yani VO becomes equal to L, yani image of this object will be formed onto this lens and VO becomes equal to L. Putting values
हमें पता था n इक्वल टू द माइनस vo अपॉन यूओ 1 प्लस डी अपॉन एफ ई, पुटिंग द वैल्यूज n इक्वल टू माइनस एल अपॉन एफ ओ इंटू 1 प्लस डी अपॉन एफ ई. Here L is the length of microscope. How to define the length of microscope? Length of microscope in near point mode or any other mode is defined as the separation between the objective and the eyepiece. ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच का जो भी गैप होगा, जो भी सेपरेशन होगा, दैट वी कॉल लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप. अगर मैं प्रेजेंट मोड में देखूं तो n इक्वल टू है वीओ प्लस यूई, वीओ प्लस यूई. ये नेगेटिव है जिस साइन कन्वेंशन के हिसाब से. जब मैं आगे चलूंगा तो मैग्नीट्यूड वाइज ये प्लस हो जाएगा, तो वीओ प्लस यूई. बट हमें पता है 1 अपॉन यूई की वैल्यू मैंने निकाली थी एफ ई प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ ई इंटू डी. तो अगर मैं यूई की वैल्यू रखता हूं तो वीओ प्लस एफ ई इंटू डी डिवाइडेड बाई एफ ई प्लस डी. ये फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है कि कैलकुलेट द लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोपिक सो एंड सो इज गिवन. यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है, दैट इज व्हाट FO and FE both should be small to keep high magnification. मैग्नीफाइंग पावर को बढ़ाने के लिए हम दोनों लेंस की फोकल लेंथ को छोटा लेते हैं, यानी बोथ द लेंस शुड बी ऑफ हाई पावर. तो मैंने कहा कि बोथ द लेंस शुड हैव डिफरेंट फोकल लेंथ बट द फोकल लेंथ शुड बी स्मॉल. तो दिस इज ऑल अबाउट द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन द नियर पॉइंट मोड. लेट अस सी magnifying power of a compound microscope in far point mode. How to define it? Magnifying power of a compound microscope in far point mode. Let us first make the ray diagram. That is again very tricky to make. First of all, we shall draw a principal axis and make the outline of the two lenses. दोनों lenses को मैंने यहाँ पर lens का outline बनाया. The first lens, which is of smaller aperture, is called objective. Optical center of this lens is called O. Here, यहां से यहां तक मैंने इसका बनाया फोकस, ये FO और ये भी FO. I know when object is just placed outside the focus. मैंने ऑब्जेक्ट को फोकस से थोड़ा बाहर रखा है. एक रे जो पैरेलल जाती है, this ray went past focus. Other ray which is passing through the optical center goes undeviated. This point is the image point. ये image point मेरे पास आने वाला है A dash B dash. A dash B dash मेरा image point है. This time this image will be formed at the focus of eyepiece. सबसे पहले मैं यहाँ पर eyepiece का outline बना लेता हूं या लेंस बना लेता हूं. आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर को मैंने कहा E, और जितना दूर इधर फोकस बना है इतना इधर हम बना लेते हैं. ये बन जाता है मेरा FE. अब जब एक रे में पैरेलल रे लेता हूं फ्रॉम दिस इमेज A dash B dash which is working like the object for eyepiece. ये एक रियल इमेज था जो आईपीस के लिए एक ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और यहां से एक रे मैंने पास कराया फ्रॉम द FE. ये रे बिल्कुल सीधा चला जाएगा. दूसरा रे में आईपीस से ले लेता हूं एक बार फिर, आईपीस के ऑप्टिकल सेंटर से. तब बोथ द रे विल गो पैरेलल ऑन प्रोड्यूसिंग बैक. दे अपीयर टू मीट एट इंफिनिटी ओनली. तो यहां पर मैं कह सकता हूं एट इंफिनिटी. जो फाइनल इमेज बन रहा है इधर बने या इधर बने, ये दोनों ही रेज इंफिनिटी पर मीट करने वाले हैं. यहां से यहां तक इसका नोमेनक्लेचर पूरा कर लेते हैं. माइनस यूओ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर ऑब्जेक्टिव. ये मेरा था आईपीस. यहां से लेके यहां तक प्लस वीओ डिस्टेंस ऑफ इमेज फॉर ऑब्जेक्टिव. ये हमने कंप्लीट कर लिया. ये डिस्टेंस इस बार मेरे पास आएगा माइनस एफ ई के इक्वल. वैसे तो यू ही है लेकिन माइनस एफ ई के इक्वल आएगा. और फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट infinity. We know magnifying power of a microscope.
m इक्वल टू था me इंटू mo। ये था मेरे पास एक इक्वेशन जो हमने प्रीवियस एक्सप्रेशन में ड्रॉ कर लिया था। हमें पता है फॉर ऑब्जेक्टिव, अगर मैं ऑब्जेक्टिव की बात करूं तो MO इक्वल्स टू है मेरे पास VO अपॉन UO विद नेगेटिव साइन, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड। एंड अगर मैं यहां पर बात करूं आईपीस की, तो फॉर आईपीस क्या होगा, आईपीस के लिए एमई कैसे निकालेंगे हम, एमई इक्वल टू होगा डिस्टेंस ऑफ इमेज, यानी यहां पर हम कहते हैं डी अपॉन यूई प्लस का डी अपॉन यूई, क्योंकि फाइनल इमेज शुड बी एट डी जब हम मैग्नीफाइंग पावर निकालते हैं। एंड दैट इज व्हाट डी अपॉन एफ ई, क्योंकि इस बार यूई मेरे पास सीधे सीधे एफ ई है, और अगर इन दोनों रिजल्ट को मैं कंबाइन कर दूं तो एम इक्वल्स टू आएगा माइनस वीओ अपॉन यूओ इंटू डी अपॉन एफ ई। यही है मैग्नीफाइंग पावर ऑफ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन फार पॉइंट मोड। एक इंपॉर्टेंट चीज और हम यहां पर लेते हैं, फॉर लार्ज मैग्निफिकेशन अगर मैग्निफिकेशन लार्ज करना है तो UO should be equal to FO, object should be placed on focus, and VO should be equal to L। एक बार फिर मैं यहां पर L दिखा देता हूं, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप, दिस इज L। तो इस पर्टिकुलर केस में M कैन बी रिटन एज माइनस L अपॉन FO इंटू D अपॉन FE। यही है कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन फॉर्मूला इन प्रैक्टिकल फॉर्म फॉर फार पॉइंट मोड। अब लेंथ कितनी निकलेगी, लेंथ क्या है इस बार, लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप L comes equal to VO प्लस FE। इस पर्टिकुलर केस में L इक्वल टू VO प्लस FE, यानी याद रखें in the case of far point mode the length of microscope is slightly larger than the length of microscope in near point mode. If magnification produced is same, then length of microscope in far point mode is larger as compared to the length in near point mode. So this is all about the magnifying power of a compound microscope in far point mode. This is all about today's class. Thank you and thank you for watching.